When I ask questions like this, you don't need to necessarily open your chat box. You can just do this or this. I'll understand. वैसे भी anyway, there are very few people who have turned on their videos. So Piyush says that fear is a good thing. Sai says fear is a bad thing. Okay. Then Sarvesh says fear is a bad thing. Okay. Yash says it's a good thing. Okay, guys. So let me share my perspective. It can be good as well as bad. Okay. So Xiaomi M2102J20SI says it can be good or it can be bad as well. यार अपने नाम रख लिया करो यार, थोड़ा सा तो प्रोफेशनलिज्म दिखा दो. So what I was saying is fear is like a mobile phone. मेरा फोन कहाँ गया भाई? Anyway, fear is like a mobile phone. Everybody has a phone as of now. The way you use it determines how it will impact your life. Do you think I don't fear? I am my biggest fear is not being successful. My biggest fear is being the same person I was yesterday. And that pushes me. So I am using that fear in a positive way. अब मान लो आप ये तो हो गया ठीक है. Now let's take a real example of taking a trade. So what is important is what do you tell yourself when you get this fear? Do you think ऐसा कोई भी इंसान है दुनिया में जिसको डर नहीं लगता? भाई सबको लगता है. But what makes a difference is what you tell yourself when you experience this fear. So let's think about this, okay? Now let's say you are let me take somebody's example. Okay, let's say Nawaz sitting over here. Nawaz is here, and let's say Nawaz is a student, college student. Am I right, Nawaz? You look like a student, bro. You're a student, okay? So Nawaz sitting here is a college student, okay? And Nawaz is just started off trading, and Nawaz is learning technical analysis and all of that. But Nawaz को डर लग रहा है ट्रेड लेने से, या फिर लॉस का डर लग रहा है. Now, what do you tell yourself when you get this fear? The best thing that you can do is just ask yourself a few things honestly. अब एक बात बताओ. Now let's say ठीक है ट्रेड लेने से डर लग रहा है. So what if I don't take this trade? What if I don't trade at all? What if I don't take this trade? What is going to happen? I am going to remain a normal average college student. एक मेरे को होप मिला था ट्रेडिंग से, जिससे मैं भाई शायद कुछ कर पाऊँ लाइफ में. एंड अगर मैं वो भी करने से डर जाऊंगा तो शायद आई विल रिमेन द सेम एवरेज पर्सन आई वाज. नाउ द क्वेश्चन इज which fear is bigger, the fear of being average or the fear of trading? Which fear is bigger? I'm sure for most of you the bigger fear is being average, being a normal person and living a normal life. Isn't that a bigger fear? And that is using that fear positively. तो अब मेरे को डर लग रहा है ट्रेड लेने से, बट नाउ आई एम टेलिंग माई सेल्फ दैट भाई अगर ट्रेड नहीं लिया एंड आई डोंट लर्न एंड आई डोंट पुश माई सेल्फ टू डू दिस, आई एम गोइंग टू रिमेन द सेम पर्सन एंड आई एम गोइंग टू लीड एन एवरेज लाइफ. दैट्स व्हेन यू पुश योरसेल्फ. That's what you tell yourself. So basically डर सबको लगता है, but what you tell yourself during that fear determines आप क्या करने वाले हो आगे. So you ask yourself, do you want to lead a normal life? Absolutely not. Okay, let me see why am I being fearful. मुझे डर क्यों लग रहा है? अब डर क्यों लग रहा है उसको भी एड्रेस करते हैं. तो ट्रेडिंग में डर मेनली दो चीजों की वजह से लगता है. व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, मेनली दो चीजों की वजह से लगता है. सो इफ यू आर टेकिंग नोट्स यू कैन राइट फियर, ड्रॉ टू एरोज बिलो. दो चीजों की वजह से लगता है. फर्स्ट इज ईदर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, या तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा ट्रेडिंग में. दूसरा इज ईदर यू आर risking what you should not risk. What is this person saying? Most of the people are not able to join from the app link. Okay, Rohan bhai, if you're here, can you please send the meeting link in? The meeting link is sent in the WhatsApp community also, right? So many people, almost everybody is here, guys. I think 110 लोगों ने कुछ register किया था. We have 95 people here, so I think should be working fine. Unworthy risk, yes. Unworthy risk, yeah. So I'll repeat. Yeah, guys, please avoid using the chat box. I get distracted. Okay, or I'll just turn off the chat box as of now. How do I turn it off? Okay, I've disabled the chat box as of now. हम लोग बात करेंगे बाद में. So what I was saying, guys, is fear दो चीजों की वजह से आता है. One is lack of confidence, या तो आप confident नहीं हो. दूसरी चीज, या तो आप
अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो। क्योंकि वंस अगेन लेट्स एड्रेस दिस, इसका रूट कॉज समझते हैं। फियर क्यों आ रहा है? कोई तो रीजन है ना, कोई तो रीजन की वजह से आ रहा है। अब कॉन्फिडेंस नहीं है उसकी वजह से डर आ रहा है, दैट इज फाइन। बिकॉज हर एक चीज में मतलब ऊपर से कोई कुछ लेके नहीं आया भाई नॉलेज में। एवरीबडी इज अ न्यू बिगिनर इन एवरीथिंग। हर एक इंसान एक पॉइंट पे बिगिनर था। सो अगर बिगिनर वाला फियर है, देन ऑब्वियसली एजुकेट योरसेल्फ मोर एंड मोर एंड मोर। सेम थिंग, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब मान लो लेट्स से, लेट्स टॉक अबाउट मी, ओके, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से यू, आप मुझे 10,000 लोगों के सामने खड़ा कर दो स्टेज पे, एंड यू टेल मी टू टॉक अबाउट ट्रेडिंग। मुझे डर नहीं लगने वाला है। व्हाई? बिकॉज दैट इज माई सब्जेक्ट। मुझे पता है क्या बात करना है, मुझे पता है कि आई हैव द एक्सपीरियंस, आई हैव द राइट नॉलेज। बट मान लो फॉर एग्जाम्पल यू टेल मी टू टॉक अबाउट कुकिंग, नहीं आता भाई मुझे, आई विल फियर, मुझे डर लगेगा। सो द रियल क्वेश्चन इज हाउ मच डू यू नो अबाउट योर ओन सब्जेक्ट। एंड अगर डर लग रहा है तो दैट मीन्स शायद, शायद अभी मेरी नॉलेज एडुकेट नहीं है, शायद मेरे पास इनफ नॉलेज नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मुझे डर लग रहा है अभी भी। उसका उसको एड्रेस करने का बहुत सही तरीका ये है कि बैक टेस्ट करो, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपने बिल्ड किया उसको बैक टेस्ट करो। यू विल गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस, आपको और ज्यादा ज्यादा डेटा मिलेगा एंड यू विल बी मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। एड्रेसिंग द सेकेंड पार्ट, फियर ऑफ अननेसेसरी रिस्क, वो सही फियर है। अब ऑब्वियसली फियर में लाइक आई सेड अर्लियर, जब मैं फियर की बात कर रहा था तो यू गाइस अंडरस्टूड अभी तक, मेरे को आई एम श्योर यू गाइस अंडरस्टूड सो फार कि दो टाइप्स के फियर होते हैं, एक अच्छा फियर होता है, एक बुरा फियर होता है, राइट? द राइट फियर पुशेस यू, द बैड फियर सेव्स यू, और यू नो स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट्स नॉट गुड फॉर यू। अनवर्दी रिस्क, अननेसेसरी रिस्क वाला जो फियर है, दैट इज नॉट गुड फॉर यू, एंड दैट इज योर माइंड सबकॉन्शियसली टेलिंग यू कि भाई बस हो गया, मत करो। दिस इज वेयर यू नीड टू स्टॉप। वंस अगेन व्हाट यू टेल योरसेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिटरमाइंस कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। सो यू कैन टेल योरसेल्फ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है ना, अब हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, यू अबाउट टू टेक अननेसेसरी रिस्क, दिमाग क्या बोलता है, अरे छलना यार, कर लेते हैं यार, चलो ठीक है, 3 लॉस स्ट्रीक हो गया, ठीक है, अब तो लॉस हो ही गया है, इससे और क्या हो जाएगा, राइट? एंड वो 4th लॉस स्ट्रीक में इतना लॉस हो जाता है फिर ट्रेडिंग करने लायक ही नहीं बचते, राइट? हाउ मेनी पीपल हैव एक्सपीरियंस दिस? 3-4 बार लॉस हुआ है, सबके हाथ उठ रहे हैं भाई, सब सब हम सेम ही हैं भाई, मैं भी वैसे ही था। तो लगता है ना कि चले यार, अब इतना तो लॉस हो गया है, चलो थोड़ा और रिस्क लेते हैं, शायद रिकवर हो जाए, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए। नाउ यू आर ऑलरेडी नॉट इन द राइट माइंडसेट। आपने ऑलरेडी 3 लॉस किया हुआ है, यू आर ऑलरेडी नॉट इन द राइट माइंडसेट, आपने ऑलरेडी लूज किया हुआ है, एंड नाउ सडनली यू वांट टू टेक मोर रिस्क। तो द बेस्ट वे, एंड ये हर चीज में अप्लाई होता है, ओके, ये हर चीज में अप्लाई होता है, एंड आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट दिस सम टाइम, आई थिंक मैंने कभी शायद यूट्यूब पे ही बात किया इस पे। If you are ever facing any psychological challenge, just stop and ask yourself, is this a logical decision? कहना बड़ा आसान है, बट यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। अब उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कैसे करना है, मैं वो भी बताऊंगा। बट नोट दिस डाउन, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, स्टॉप एंड आस्क योर सेल्फ, इज दिस अ लॉजिकल डिसीजन? नाउ अभी रिसेंटली आई थिंक मैंने आज ही एक रील डाली थी। आई वाज जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ वेरी हाई लेवल ट्रेडर, ही वाज अ बिलियनर, एंड ही टोल्ड मी दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। वन इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, सेकंड इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। हाउ मेनी ऑफ यू नो द डिफरेंस? चलो मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ये होती है विच इज लाइक एन ओपिनियन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज एन इंफॉर्मेशन जो फैक्ट बेस्ड है। लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल। अब एक स्टॉक है, लेट्स से आज अभी आई थिंक कुछ तो इथेनॉल का कुछ तो न्यूज, गवर्नमेंट ने लिफ्ट लिफ्ट किया था बैन, तो आई थिंक ऑल शुगर स्टॉक्स वेंट अप। सो लेट्स से एक स्टॉक ले लेते हैं, रेणुका शुगर्स ले लेते हैं, ठीक है। नाउ रेणुका शुगर्स इज इन एन अप ट्रेंड एंड इट इज फॉलोइंग अ ट्रेंड लाइन। नाउ व्हेन आई ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, दैट ट्रेंड लाइन इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज एन ओपिनियन गाइस। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं, क्या गारंटी कि वो वही ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है? कोई गारंटी नहीं, राइट? इन दी एंड तो चार्ट तो वही करेगा जो चार्ट को करना है। सो दैट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूं चार्ट पे, दैट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, बिकॉज वो मेरा ओपिनियन है। बहुत डीप बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज लाइक एन ओपिनियन, जो मेरा बायस है, जो मेरा व्यू है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब
अगर मैं हम सब लेट्स से फॉर एग्जांपल एवरीबडी गेट्स अ चार्ट, एवरीबडी सिट ऑन द सेम चार्ट एंड आई टेल यू एनालाइज इट, डू यू थिंक हम सब सेम एनालिसिस करने वाले? एब्सोल्युटली नॉट, because technical analysis is qualitative information, it is opinion based. Now what is quantitative information? Quantitative information is fact based. Like अब रेणुका शुगर का बैलेंस शीट is showing 10% increase in the revenue, that is quantitative information, that is fact. But Renuka Sugar is following this trend line, that is qualitative information. So whenever you're getting a thought, मान लो कोई भी action आप ले रहे हो in trading, whenever you're taking an action, you need to ask yourself, is this action or is this thing backed by quantitative information or qualitative information? मैं बार बार ये लंबे लंबे वर्ड बोलने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट टेल योरसेल्फ ओपिनियन है या फैक्ट है यार, सिंपल सी बात है, ये बोलने में ट्रेड निकल जाएगा तुम्हारा। तो फैक्ट है या ओपिनियन है, राइट? सो आप लोग यार इतना सीरियस हो जाते हो, बीच बीच में जोक मारना पड़ता है मुझे। सो फैक्ट है या ओपिनियन है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। ओके, सो नाउ लेट्स से यू आर टेकिंग अनदर ट्रेड, 3 लॉसेस हो गए, 4th ट्रेड है। नाउ दिस ट्रेड लुक्स वेरी गुड, ऐसा लग रहा है कि भाई इसी ट्रेड में तो मैं 10 मिलियन कमाने वाला हूं, एंड योर माइंड इज टेलिंग यू दैट आई शुड टेक दिस ट्रेड अगेन आफ्टर लूजिंग 3 times. दैट इज क्वालिटेटिव. What does quantitative says? What does the fact say? Let's say अगर आप एक रूल बेस्ड ट्रेडर, आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, आपने रूल बनाया हुआ है, so the facts say that Mr. Ganesh should not take more than 3 trades in a day. That is fact. That is a rule that you have made for yourself. That is quantitative. Okay, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट स्टे विथ मी, यू slowly अंडरस्टैंड. तो you have to ask yourself this whenever you're taking a decision: is this fact or is this opinion? And 90% of the time, guys, 90% of the time it is going to be an opinion. And we are in a very tricky profession, guys. One of the most difficult, one of the most tricky professions that you can ever be, because we have to use the facts. अब we have to make sure कि वो opinion के साथ mix नहीं हो रहा है, right? But फिर भी थोड़ा सा opinion लगता है, थोड़ा सा opinion mix करना पड़ता है, उसके बगैर व्यू कैसे फॉर्म होगा, right? So we have to make sure that we know the fine line between the fact and the opinion. Okay, once again we'll talk more on this, but अपने आप से ये सवाल करना है, this will make sure it will address and it will bring out the truth कि ठीक है अब मेरे को ट्रेड लेने से डर लग रहा है, इज दिस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, फैक्ट है या ओपिनियन है? अब अगर ओपिनियन है तो एटलीस्ट आई विल नो, अब ये जो मैं बता रहा हूं क्या इससे इंस्टेंटली चेंज आने वाला? नहीं, इंस्टेंटली चेंज नहीं आने वाला. यू आर स्टिल गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक, यू आर स्टिल गोइंग टू टेक अ 4th ट्रेड अगेन, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बीइंग अवेयर. अभी एज ऑफ नाउ अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, यू नॉट इवन अवेयर कि आप क्यों कर रहे हो ओवर ट्रेडिंग, यू जस्ट नो कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो. बट नाउ यू विल बिकम अवेयर. अब मैंने आपको बता दिया है कि फैक्टर ओपिनियन यू हैव टू डिफरेंशिएट. सो नाउ यू स्लोली बिकम अवेयर दैट आई वाज डूइंग ओवर ट्रेडिंग. अब आज मान लो मैंने 4th ट्रेड ले लिया, मैंने लॉस कर दिया. नाउ व्हेन आई लुक बैक आई विल बी अवेयर कि हाँ भाई गलती हुई है, नहीं करना चाहिए था. सो यू टेल योर माइंड दैट गलती हुई है. सो स्लोली फिर उसके बाद 1-2 बार गलती होगी, फिर तीसरी बार होगी, चौथी बार योर माइंड विल टेल यू भाई कितनी बार करेगा, बस हो गया. एंड दैट्स हाउ यू विल स्टॉप. तो ये जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं ना, ये इमीडिएटली नहीं होने वाली. सो डोंट थिंक भाई आफ्टर दिस वेबिनार यू विल बिकम मार्क डुगलस. ओके, डोंट थिंक दैट. टाइम लगता है ऑब्वियसली भाई, सालों सालों लग जाते हैं टू चेंज थिंग हियर, बट इन द एंड गेम वही है. इन द एंड द गेम इज फाइटिंग हियर ओनली. इन द एंड चार्ट वार्ट तो मेरे हिसाब से फॉर्मेलिटी है भाई. आई पर्सनली फील दैट इन ट्रेडिंग चार्ट्स एंड ऑल दैट्स ऑल जस्ट फॉर्मेलिटी. असली गेम इधर है, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू मास्टर. सो ये हो गया फियर के ऊपर. नाउ लेट मी एनेबल द चैट बॉक्स, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट ऑन समथिंग एल्स. ओके गाइस, चैट बॉक्स इज नाउ एक्टिव. Not able to understand why my trade is wrong. Okay, revenge trading. Revenge trading, I think already I covered in this thing, same thing, fear वाली चीज में. When when you're taking that trade, you need to ask yourself क्या है मतलब random. Okay, random trading also. All of this is